وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، آگے شیئر کریں اور اسی طرح سے اچھی دینی ویڈیو کی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ احسان و کرم ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا، اور انسانوں میں بھی اللہ و تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، اور ان تمام مسلمانوں سے بہتر امت و افضل و اعلیٰ جناب حبیب کبریا تاجدار مدینہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کا مہینہ ہے۔ آپ نے جانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، نبی کی سیرت کی بیان کی گئی پچھلے جمعہ سے، اور آج 20 تاریخ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ 30 تاریخ چاند نظر آنے کے بعد پھر ربیع الثانی 11ویں کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے بہت سارے جمعہ سے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اخلاق، کردار کے بارے میں بیان کیا تھا، بتایا۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں بیان ہوگا، کیونکہ یہ ربیع الاول کا مہینے تھا اور 12ویں تاریخ تھی، ربیع پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے وفات کر چکے تھے۔ نبی کی 63 سال عمر ہونے کے بعد یہی ربیع الاول کی آخری مہینہ جو وفات کا بھی مہینہ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں جاننا ہم لوگ کے لیے ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال عمر ہونے کے بعد اللہ و تبارک تعالی فرشتے ملک الموت، جس کا نام حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے، جو ہر انسان کی روح نکالتے ہیں، جس کو اللہ نے ملک الموت، موتوں کا مالک بنا دیا اللہ کے حکم سے کہ جاؤ فلانا کی روح نکالو، انہیں آتی اور روح لے کر چلے جاتے۔ پتہ چلا کہ سب کو اس دنیا میں مرنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ربیع الاول 12ویں ربیع الاول کو وفات کر چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی 12ویں کے مہینے میں ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام، اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے نبی کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے آپ کی روح نکالنے کے لیے، اس دنیا سے جانے کے لیے، وفات کرنے کے واسطے میں آیا ہوں۔ آپ کی کیا مرضی ہے؟ آپ اگر رہنا چاہتے ہیں تو اللہ اور بھی زندگی دیں گے، اللہ اور بھی جو ہے دنیا میں رکھیں گے۔ آپ کی کیا مرضی ہے؟ اللہ نے آپ کے مرضی کے مطابق مجھے روح نکالنے کے لیے بھیجا۔ ذرا سوچو وہ نبی کس قدر ہوں گے، کیسے اللہ کے حبیب ہوں گے، کتنے اللہ کے پیارے ہوں گے، اللہ کے چاہنے والے ہوں گے، اللہ کتنا اپنے نبی محبوب سے پیار کرتے ہوں گے کہ موت دنیا سے جانے سے پہلے موت کے بارے میں پوچھ رہا، تمہیں مرنا ہے کہ نہیں؟ ہمیں اور آپ کا کب موت ہے ہم نہ معلوم نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روح نکالنے سے پہلے فرشتہ آ کر پوچھ لی، کیونکہ اللہ کے حبیب ہے، دو جہاں سرور دو عالم مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ میرے نبی نے کہا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، ابھی اللہ کے پاس گئے، آنے دو جبرائیل کو۔ جبرائیل کیا خوشخبری لاتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کو کیا مرضی ہے؟ فرشتے نے کہا اللہ کو کیا مرضی ہے؟ پھر اللہ کے پاس جا کے آنے، بھئی اللہ تو ہمیں موت کے بارے میں بتایا کہ جاؤ نبی کو پوچھو۔ میں آیا، پوچھا، پھر وہ جبرائیل ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، جاؤ اللہ کو پوچھو اللہ کی کیا مرضی ہے، میں مروں کہ زندہ رہوں۔ اب ہمیں اور آپ دنیا کی فکر کر رہے ہیں، ہمیں ابھی ہے جوانی،
ابھی عمر ہے، کب مرنا، ابھی تو عمر ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ملک الموت ہماری موت لکھ دی گئی ہے، کب کیسی موت آ جائے گا کسی کو معلوم نہیں، لیکن موت سے پہلے ہماری اپنی موت کو یاد کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ موت کا عالم بہت بڑا سختی ہے۔ آئیے جانیں گے ہم نبی کی وفات سے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، میرے محبوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں؟ کیا موت کی خبر سن کو رو رہے ہیں؟ اے لوگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام جو مشہور فرشتے ہیں اللہ نے بھیجا، جا میرے نبی کے پاس پیغام لے کر جا، میرے نبی کیوں رو رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کو تو دل کی بات معلوم، پھر بھی اپنے نبی کے منہ سے سننا اللہ کو بہت بڑا پسند ہے۔ نبی کی زبان سے بات نکلی ہوئی، وہ بات اللہ کو بہت بڑا پسند بھی ہے اور پیارا بھی ہے۔ نبی کی بات زبان سے نکلتی ہے تو ہو جاتی ہے۔ نبی جو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں، نبی کی محبت میں سب کچھ ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جبرائیل علیہ السلام آ کر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری وفات تو جا جائیں گے، میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت کا کیا ہوگا؟ میرے امت کیسے گزاریں گے؟ میرے امت کے اندر کیسے ہوں گے؟ اللہ کے رسول اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں۔ پیدا ہوئے ربی حبلی امتی کر کو، جا رہے ہیں پھر زبان پہ امتی ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے چند دن کچھ دن جو ہے بیمار بھی تھے۔ آپ ذرا سوچیں، اللہ کے پیارے رسول جو دوسروں کی مدد کرتے تھے، بیماروں کو شفا کرتے تھے، وفات سے پہلے خود ہی چند دنوں تک بیمار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ اے صدیق، جہاں میں نماز پڑھا رہا ہوں آج سے وہ امامت خلافت تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ میری طبیعت اچھی نہیں ہے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں میں امتوں کا نماز پڑھا سکوں، میں بیمار ہوں، میری جگہ تو لے لے اور نماز پڑھا۔ ذرا سوچو، میرے نبی کہ زندہ رہتے ہوئے میرے نبی کے سامنے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہے، جو حضرت اماں عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، اللہ تعالیٰ دین کو دیکھتے ہیں، جن کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہو، جن کا دل میں دین کی محبت ہو، اللہ اس کو پیار جو ہے قبول کرتے ہیں۔ بہت صحابی رسول تھے، اللہ کے رسول بیمار تھے، مگر ان کی جگہ نماز، ان کو حکم ہوا جو نمازی بن جائے، جو اللہ کے رسول کے ہر قدم کو اپنا قدم سمجھے، جو رسول کی سنتوں کو اپنا جان قربان کر دے، ایسی کو امام بنایا میرے نبی نے۔ ایسے تیرے کو نہیں، نبی تھے، نبی کے سامنے، نبی کے رہتے ہوئے نماز پڑھانے والا کو کیوں ہمیں اور آپ کسی کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کی امامت معمولی امامت نہیں ہے، معمولی امام نہیں ہے۔ ایسا امام جو نبی پر جان دینے کے لیے قربان ہو جائے، جو نبی کی نماز کے لیے اپنی جان دے دے، جو نبی کی دین کے لیے اپنا مال قربان کر دے، جو نبی کی خاطر اپنے دن و رات ایک کر دے، ایسا شخص ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ صحابی وہ رسول ہے، وہ صحابی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لمحہ اپنے پاس رکھا۔ ذرا سوچو وہ صحابی رسول کس قدر تھے۔ آج ہمیں کیسا بھی ہونا، کون بھی ہونا، نماز پڑھاتے چلتی ہیں، یہ سمجھ لیں نا، جس کے اندر دین ہو، اخلاق ہو، نمازی ہو، اچھائی ہو، سچائی ہو، حرام نہ کھاتا ہو، اور نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہو، نبی کی چہرے سے چہرہ ملتا ہو، نبی کی ہر اعتبار نبی والے ہو،
कोई नबी की दुश्मन, नबी के गुस्ताख, बेनमाजी ऐसा नहीं। उसके पीछे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा हुसैन करबला वाले ने कह दिया ऐसे लोगों को मैं इमाम नहीं मानता, जो नमाज़ों को छोड़ा करते हैं, जो नबी की सुन्नतों को नहीं मानते हैं, जो नबी की दीन पर नहीं चलते हैं, ऐसे लोगों के पीछे मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। कौन कहते थे? मेरे आली मकाम हज़रत हुसैन शहीद करबला वाले। तो हमारे मुत्तकी, परहेजगारी, दीनदारी, हाफिज, आलिम, कुरान, दीनदार, नेक, साले, नमाजी, सालिहीन, बुजुर्गीन, दीन जो अच्छे हो, दीनदार हो, ऐसे को इमाम बनाना, ये मेरे नबी ने बताया। देखो बूढ़े आदमी अबू बकर सिद्दीक कैसा है, चेहरे से लेकर पाँव तक नबी की मोहब्बत झलक रही है, नबी की सुन्नत ही नज़र आ रही है। तो नबी बीमार है, नबी की जगह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु इमामत कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ा रहे हैं। अब ये बात तो वाज़ेह हो गया, ये बात तो पता चल गया, मालूम हो गया लोगों को कि मेरे नबी जाने के बाद जिसकी इमामत और खिलाफत है वो अबू बकर सिद्दीक की थी। नबी की जो हुक्म थी, नबी का जो माल था, नबी का जो खिलाफत थी, नबी का जो इमामत थी, अबू बकर सिद्दीक ने संभाला और सहाबा किराम ने उसके हाथ पर बैत की। अबू बकर सिद्दीक को अपना इमाम भी मान लिया नबी के जाने के बाद, क्योंकि मेरे नबी ने जिसको इशारा किया ज़िंदगी में वही हमारा इमाम होगा, वही हमारा खिलाफत संभालने वाला होंगे, वही हमारा रहबर होंगे। और दुनिया के अंदर अबू बकर सिद्दीक के ख़िलाफ़ लोगों ऐसे तैसे बोल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से मालूम चला कि इमामत और खिलाफत अबू बकर सिद्दीक की थी। अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया सिद्दीक को नमाज़ पढ़ाने के लिए, और सिद्दीक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दिनों में जो बीमार थे उस कितने वक्तों का नमाज जो है अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाया। अब पता चल गया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत और खिलाफत पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीक है। नबी की वफ़ात से हमना मालूम चल गया कि नबी से आ जाने से पहले अबू बकर सिद्दीक को अपना इमाम और खिलाफत दे दिया। कुछ लोग कहते कि नबी के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु इमाम नहीं, खलीफा नहीं। तो उन लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ, नबी के ज़माने में कितने नमाज जो है नबी के सामने अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाया, और जाने के बाद भी हज़रत उस्मान गनी, हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत अबू सआद, इसी तरह से जितने भी सहाबी रसूल, अबू हुरैरा और बहुत सारे सहाबे किराम थे, सब ने अबू बकर सिद्दीक को अपना इमाम माना, उनके हाथ पर बैयत की और अपना खलीफा समझा। और आज हम कहीं नहीं समझे भाई, जो अबू बकर सिद्दीक का गुस्ताख हो, जो उनका खिलाफ हो, वो अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ है, अल्लाह और रसूल के ख़िलाफ़ है। इसलिए हमें साहबी रसूल सिद्दीक से मोहब्बत होना चाहिए कि सिद्दीक वो सच्चा दिल है जिसे मेरे नबी ने सिद्दीक कह के पुकारा कि तू सच्चा है। तरा सोचो क्यों कहा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत खिलाफत अबू बकर के हवाले, बीमार पड़े हुए थे। अब फरिश्ते आए, आपको अल्लाह ताला ने भेजा, मौत आपकी रूह निकालने वाले हैं, जाने वाले हैं, आपकी क्या मर्ज़ी है, आपकी क्या मर्ज़ी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह को जो मर्ज़ी है मुझे वो मंज़िल है। हमें क्या समझ रही, हम ना मालूम है कि मौत हम ना कब है, कब चले जाएंगे, लेकिन फिर भी मौत का तैयारी नहीं। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत का फ़िक्र कर रहे हैं कि मैं जाने से पहले मेरे उम्मत का ख़याल कर रहे हैं, अपने उम्मत के बारे में सोच रहे हैं, फ़िक्र कर रहे हैं। आज ये उम्मत उनके बारे में सोच भी नहीं, फ़िक्र भी नहीं, दुनियादारी में लगकर, दुनिया के कामों में लगकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म सुन्नत को भूल चुके हैं कि नबी क्या फरमाए, नबी का क्या हुक्म है, रसूल का क्या हुक्म है, सब भूल गए हैं। उनकी इमामत, उनकी खिलाफत भूल चुके हैं। ज़रा सोचो है मुसलमान भाइयों, जिस नबी ने इस उम्मत को आखिरी वक्त भी नहीं छोड़ा, वो नबी को आज हम क्यों छोड़ें? उस नबी की नमाज़ों को क्यों छोड़ें? उनकी इबादत को क्यों छोड़ें? अल्लाह हमें खुशहाल रखा है, अल्लाह हमें ज़िंदगी अच्छी दी है, मुसलमान बनाया है, ईमान वालों के घर में पैदा किया, और क्या चाहिए? फिर भी हम क्या करते हैं? बदनसीब की तरह बुरा बनकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गुनहगार की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जब सूरा इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह नाजिल हुई, तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 80 दिन के बाद पूरे सहाबा किराम को बैठा हुए, जैसे मस्जिद में आप बैठे हुए हैं, ऐसे पूरे सहाबा किराम बैठे, मेरे नबी खुतबा दे रहे हैं।
जिस तरह से मैं खुतबा दे रहा हूँ, नबी खुतबा दे रहे हैं, अपने सहाबा किराम को बैठाए हुए हैं, सब साहबियों को कह रहे हैं अल्लाह ने सूरह उतार दी, अब ज़िंदगी कम है, दुनिया ख़त्म होने वाली है, तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नासा यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। अल्लाह का हम्द करो, अल्लाह की तस्बीह करो, अपने गुनाहों से तौबा करो, अपने गुनाहों से तौबा करो। ऐसा वक्त आएगा कि तुम मर जाओगे, चले जाओगे, गुनाह बन कर लेकर जाओगे, फिर वहाँ क्या दिखाओगे अल्लाह के सामने। तो इसीलिए कहा कि मेरे ऊपर ये सूरत नाजिल हुई और 80 दिन के बाद ये सूरत उतरने के बाद फिर कहा कि अब जो है ए सहाबा किरामो, तुम मेरे मानने वाले, तुम मेरी उम्मत हो, तुम मेरा कलमा पढ़ रहे हो, अल्लाह रसूल की जो हुक्म के ज़िंदगी गुजार रहे हो, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं अगर किसी को तकलीफ़ दिया हूँ, अगर किसी को मारा हूँ, पीटा हूँ, गाली दिया हूँ, किसी को किसी किस्म का कोई मैं तकलीफ़ दिया हूँ ज़बान से भी, तो मुझे अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दे, या तो फिर उसका बदला ले ले। आज बदला ले ले भाई। मैं अगर किसी को ज़बान से गाली दिया हूँ, मेरे नबी ने कहा, अगर बुरा भला भी कहा हूँ, अगर किसी को बुरा लगा है तो वो मुझे जो है उसके बदले में कह दे। अब ज़रा सोच, जब मेरे नबी ने ये फरमाने लगे, पूरे सहाबा किराम रोने लगे। अल्लाह के रसूल ये क्या फरमा रहे हैं? ए अल्लाह के रसूल, आप तो इतने प्यारे हैं, किसी का आप इतने इखलाक मोहब्बत, प्यार और मोहब्बत इतने चाहने हुए, हमको आपकी ज़बान से एक भी बुरा नहीं लगा, आप ऐसे क्यों फरमा रहे हैं? सहाबा किराम रोने लगे, सहाबा किराम रोने लगे, पूरे सहाबे मजमा के अंदर बैठे हुए हैं, सहाबा किराम रोने लगे कि अल्लाह के रसूल, आप तो किसी को मारे नहीं, बोले भी नहीं, लेकिन आप ये क्यों फरमा रहे हैं कि नहीं, तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, इंसान गुनाह पे गुनाह करेगा, नमाज़ों को छोड़ा करेगा और न अल्लाह की इबादत को छोड़ेगा, गुनाह पर गुनाह करेगा, अल्लाह का नाफरमानी करेंगे, मगर तौबा करने की नौबत नहीं आएगी। और आज हमारे मुसलमानों को देखो, जुम्मा का दिन है, हफ्ते में एक बार भी अल्लाह का जिक्र नहीं, अपने गुनाह का भी इस्तग़फ़ार नहीं करना। जब कुरान फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर, अल्लाह का हम्द करो, तस्बीह करो और इस्तग़फ़ार करो, इन्नहु कान तव्वाबा, तव्वाबा, तौबा, अपने गुनाहों की तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह से मांगो और गुनाहों को छोड़ो, क्योंकि तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगी। लेकिन दरवाज़ा आज तो ऐसा मालूम चल रहा है कि हर मुसलमान गुनाह करते हैं, लेकिन कभी तौबा नहीं करते, तौबा की नौबत नहीं पड़ती, नमाज़ों को आते नहीं, अल्लाह के घर में आकर मांगते नहीं, कहते नहीं, घर में बैठ को 24 घंटा दुनिया की काम में लगकर, दुनियादारी में लगकर आकर घर में तौबा इस्तग़फ़ार कर ले तो हो जाती नहीं होगा। जब तक अल्लाह के सामने अपने गुनाह का एहसास ना करे कि अल्लाह मैं नमाज़ों को छोड़ दिया हूँ, या अल्लाह मैं फ़लाना गुनाह किया हूँ, अल्लाह मैं फ़लाना चीज़ किया हूँ, अल्लाह फ़लानी ग़ीबत किया हूँ, फ़लाना झूठ खाया हूँ, फ़लाना जो है बुराइयाँ करता हूँ, अल्लाह ये मैं आज से तौबा करता हूँ तेरे सामने, मैं कभी भी ये गुनाह नहीं करूँगा। तो अल्लाह कहेगा, ऐ फरिश्ते देख, मेरा बंदा मेरे पास आकर तौबा का इस्तग़फ़ार का दुआ कर रहे हैं, जा इसकी जो गुनाह है उसे मिटा दिए जाए। तो अल्लाह ताला उसकी गुनाहों को मिटा देते हैं। लेकिन आज मेरे मुसलमान भाई ज़रा सोचो, हफ्ते से वरम तक आज जुमा का दिन भी, आज भी आकर अल्लाह से नहीं कहे अल्लाह मैं बरसों का गुनाहगार हूँ, तो आप बताओ ने तौबा कब कर रही? इसलिए तो मेरे नबी फरमाए कि सूरत नाजिल होगी कि अब गुनाह तौबा का जो है दरवाज़ा बंद हो जाएगा। और मुझे यही लग रहा है, मेरे नबी ने 1400 साल पहले जो बोल कर गए थे, आज वही हो रहा है। हर मुसलमान आज गुनहगार बनकर ज़िंदगी गुजार रहे, लेकिन तौबा की नसीब नहीं। मेरे नबी जाने से पहले लोगों को कहा कि तौबा कर लो, मैंने किसी को कुछ कहा तो मुझे माफ़ कर दो या उसका बदला ले लो। मेरे नबी ने जब कहा, पूरे सहाबा किराम रोने लगे। आप तो किसी को नहीं कहे, कुछ नहीं कहे, लेकिन मेरे नबी ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ मैंने किसी को मारा नहीं, गाली दिया नहीं, कुछ किया नहीं, लेकिन एक शख्स का मेरे ऊपर कर्ज है। ज़रा सोचो, एक साहबे रसूल पर मेरा कर्ज है, मैं उसका कर्जदार हूँ, उनका हक मुझे अदा करना है, मैं तो अदा नहीं कर सकता, मेरे तरफ से अल्लाह ताला कल दुनिया क़यामत में अदा करेंगे। वो शख्स यहाँ मौजूद है। अब पूरे सहाबा किराम एक दूसरे के मुंह तकने लगे। अली उमर के मुंह तकने लगे, उमर उस्मान गनी के तकने लगे, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु अबू बकर सिद्दीक़ के तकने लगे, अबू तलहा, अबू ज़ुबैर, अबू साद, इसी तरह जो भी साहबे के, अबू हुरैरा, बहुत सारे साहबी थे। भाई कौन ऐसा शख्स है जो नबी ने, जिसके ऊपर नबी उनके ऊपर कर्ज है? कौन वो शख्स है?
पूरे साहबा देख रही हैं कि मजमे में बैठे हुए ये वो उसका मुंह दूसरे का मुंह ताक रही, मगर मालूम नहीं चल रहा कौन है भाई। साहबा किराम ताक रहे, लेकिन उसी में से मेरे नबी खड़े होकर कहा वो शख्स ये है। जैसे ही कहा कि वो शख्स ये है, कौन भाई? मेरे नबी ने कहा मेरा यार, मेरा दोस्त, मेरा हबीब, मेरा चाहने वाला, मेरी मोहब्बत, मेरी उल्फत अबू बकर सिद्दीक है। वो शख्स कौन है भाई? अबू बकर सिद्दीक है, जिनका जान का भी मेरे ऊपर कर्ज है, जिनका माल का भी मेरे ऊपर कर्ज है। जब इस्लाम में माल की बारी आई, जब कहा गया कि इस्लाम में माल की ज़रूरत है, दीन को माल की ज़रूरत है, मुसलमानों के लिए माल की ज़रूरत है, तो सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक अपने घर में गया, पूरे जो घर का सामान लेकर आ गए, पूरे सामान लाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक में, नबी की बारगाह मुबारक पर लाकर हाजिर मौजूद कर दिए। कहा कि अबू बकर सिद्दीक ने कहा अल्लाह के रसूल, मेरे तरफ से ये छोटा सा तोहफा माल है, आप अपने दरबार में कबूल कर लीजिए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक अपने मालों से मुझे जो खरीद लिया है उनका कर्ज मेरे ऊपर है। जब मैंने कहा ए अबू बकर बता तेरे घर में कुछ बचा है, अल्लाह के वास्ते देखो कुछ बचा है, तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा ए अल्लाह के रसूल, मेरे घर में अगर कोई है तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल है। मेरे घर में एक सामान नहीं बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़ कर आया हूँ। अगर आज मेरे घर में कोई चीज़ है तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल है। ऐ लोगों, तेरे घर में अल्लाह और रसूल के अलावा सब कुछ है, मगर अल्लाह और उसके रसूल ही नहीं है। अपने घर को झांक कर देखो, हर मुसलमान अपने घरों को देखा जाए कि हमारे घर में क्या है भाई। कौन तो भी रसूलुल्लाह वाले हैं, कौन तो भी अल्लाह वाले हैं? नहीं है। ना कोई नमाजी है, ना रसूलुल्लाह की सुन्नत मोहब्बत है, ना कुरान पढ़ने वाले हैं, ना अल्लाह रसूल की है तो दुनिया की पूरी चीज़ें हैं, अल्लाह रसूल नहीं है। क्या नहीं भाई? कपड़े हैं, खाने पीने, घर मकान, बाग बगीचे, गाड़ियाँ, अल्लाह सब दिया है। क्या नहीं है आपके पास? लेकिन अबू बकर सिद्दीक से पूछो, मेरे नबी मजमा में खड़ा होकर कहता है मेरा माल का भी जो है कर्ज है वो अबू बकर सिद्दीक का है। अबू बकर सिद्दीक, जब मैंने कहा ए सिद्दीक तुम तो कुछ तो रख भी आए हो, क्या पूरा सामान क्यों लेकर आए हो? कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे घर में सिर्फ मैं अल्लाह और उनके रसूल को छोड़ कर आया हूँ। अगर मेरे पास मेरा रसूल हो जाए, मेरा अल्लाह मेरे दीन में हो जाए तो बस मेरे लिए यही काफ़ी है। किसने कहा था? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। हमारा पूरे माला रखो अल्लाह दीन की खातिर, मस्जिद को चलाने के लिए, मस्जिद मदरसे को, और जो भी इमाम साहब कुछ भी करने के लिए उसमें पीछे हट जाते हैं। ये हमारा दीन की कमज़ोरी है। वो अबू बकर सिद्दीक से पूछो, माल तो कुर्बान कर दिए, फिर मेरे नबी ने कहा माल के साथ जान का भी मेरे ऊपर कर्ज है। क्यों? जब मैं गारे सोर पर सो रहा था, जब सोते सोते अबू बकर सिद्दीक को सांप ने डस लिया, जहर जिस्म पे फैल गई, मगर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने गारे सोर के अंदर जो सुराख के अंदर पाँव रखी थी, वो रोज़न से, वो बिल से जो सांप डस रही, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं अबू बकर सिद्दीक वो जहर का दर्द पी रहे हैं, फिर भी मुझे जगा नहीं रहे। जब अबू बकर सिद्दीक की लहू, जब ये आंसू गिर को मेरे गाल मुबारक पर पड़ा तो मैं जागा, देखा कि अबू बकर सिद्दीक मेरे यार क्यों रो रहे हैं? कि अल्लाह के रसूल, कोई कीड़े मकोड़े मेरे पाँव को डस लिया है, काट लिया है, जिसकी दर्द हो रही मेरे जिस्म को। मेरे नबी ने कहा पाँव हटाओ, वो कीड़े मकोड़े नहीं होंगे, कुछ चीज़ है, हटाओ। जैसे ही हटाए वो सांप निकल पड़े। उस वक्त ने मेरे नबी की जान अगर बचाया तो अबू बकर सिद्दीक ने बचाया। फिर मेरे नबी ने कहा सिद्दीक, तेरा जान का भी मेरे ऊपर जो है कर्ज है, तूने अपना जान देकर मेरी जान को बचाया। कल क़यामत में मैं अल्लाह से कहूँगा, ए अल्लाह, मेरा जान का कर्ज और माल का कर्ज मैं आया हूँ, अबू बकर सिद्दीक का कर्ज जान का है, माल का है, मेरे तरफ से आप अदा करें। तो अल्लाह ताला कल क़यामत में फरमाया क्या मैंने नबी की वो कर्ज, जन्नत के 8 दरवाज़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए खोल दिया गया, और 8 दरवाज़ा खोल दिए जाएंगे, और सिद्दीक जिस दरवाजे से चाहेंगे वहाँ से दाखिल हो जाएंगे। ऐसे साहबी रसूल है भाई। देखो कितनी बड़ा मर्तबा है। इसलिए मैंने खुतबा अरबी में पढ़ता हूँ, खुसूसन अला अफजलिल बशरी बादल अंबियाई बित्तहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। मेरे नबी ने कहा खुसूसन खास, अगर कोई अंबियाओं के बाद, अंबिया और रसूल के बाद कोई बड़ा नहीं, अल्लाह उसके बाद अंबिया रसूल, अंबिया और रसूलों के बाद कोई बड़ा इंसान नहीं। अंबिया और रसूल के बाद अगर कोई इंसान है, कोई बशर, कोई नेक इखलाक, कोई मर्तबा वाले, कोई ऊंचा वाला इंसान है तो वो अबू बकर सिद्दीक है। कितना बड़ा मर्तबा पाया मेरे नबी की
माल जान सब कुर्बान करने वाला वो है नबी की आशिक। हमें कैसा नबी का आशिक भाई, नबी की नमाज़ा नहीं पढ़ी, नबी की इबादत को छोड़ बैठे, दुनिया की पड़े गए। ज़रा सोचो, ये नबी की वफ़ात हमारा सिखा रहा है। अगर हमारी काम है मौत आए तो छोड़ना पड़ता, हमारा घर है मौत आए तो छोड़ना पड़ता, सारी चीज़ों को छोड़ के जाएंगे। मेरे नबी आखिरी वक्त में कह रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरे तरफ से मेरी जान माल की कुर्बान करने वाला सिद्दीक को तू अता करना। और अल्लाह ने क्या अता किया? जिब्राइल आए कि अल्लाह के रसूल आपकी दुआ कबूल हुई। अल्लाह ताला ने कल क़यामत में जन्नत के 8 दरवाजे, कितने भाई? 8। आज मस्जिद के एक ही दरवाज़ा हम ना नजरी, फिर भी वो दाखिल नहीं होने पा रहा है कि नहीं? हमारे गांव के अंदर अल्लाह की घरा खुला है। कल क़यामत में जब जन्नत के दरवाज़ा बंद हो जाएंगे, ताला लग जाएंगे, हम जा नहीं सकेंगे, तो क्या करेंगे भाई? अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जन्नत जाने के लिए जन्नत की किली चाहिए। क्या चाहिए? किली, चाबी चाहिए। लेकिन चाबी कहाँ मिलेगा भाई? नमाज। नमाज जन्नत की कुंजी है। हदीस शरीफ में, बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि नमाज जन्नत की कुंजी है। अगर कुंजी नहीं रहा, चाबी नहीं रहा, तुम्हारा बड़ा महल बन जाए तो तुम अंदर दाखिल नहीं हो सकते। ज़रा सोचो। तो इसी तरह से नमाज ये जो है भाई जन्नत की कुंजी है। अगर तेरे पास ये है तो तू दरवाज़ा खोल कर जन्नत चला जा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि कुंजी लेकर आओ, नहीं तो वरना कल जन्नत के दरवाजे पे खड़ा कर दिया जाएगा और जन्नत के जाने के तुम मोहताज हो जाओगे। तो मेरे दोस्तों, अब नमाज कितनी बड़ी इबादत है। मैं हर बयान में नमाज को लेता हूँ क्योंकि हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है, नमाज ही नहीं है, इसीलिए मैं नमाज को कभी नहीं छोड़ता। और नमाज की हर बयान, चाहे वफ़ात, चाहे नबी 11वीं 12वीं कुछ भी आए, नमाज को लेकर मैं बयान करता हूँ। मेरी हर बयान रिकॉर्डिंग में सब में आप सुने होंगे, जाने होंगे कि नमाज के बारे में कितनी बड़ी बड़ी वाक़यात और कहानियाँ हमने सुना, फिर भी हम उस पर अमल नहीं कर रहे। वजह क्या है? हमारा दीन कमज़ोर हो गया है, हमारा ईमान कमज़ोर हो गए, हमारे नबी की मोहब्बत कमज़ोर हो गई। नबी की वफ़ात ये हमने ये दिलाती कि आखिरी वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौबा कर ले, इस्तग़फ़ार कर लो। आज हमारे अंदर हमारी सब कुछ है कि नहीं? घर मकान अल्लाह जो भी दिया खुशहाल रखा कि नहीं? कौन भी भूखा नहीं सो रहा, किसी को कुछ कमाई नहीं। लॉकडाउन के अंदर भाई बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कमाते थे, व्यापारा नहीं चलते थे, फिर भी अल्लाह किसी को भूखा नहीं सुलाया कि वही मुसलमान हमारे इस गाँव के अंदर नहीं भूखा रहा। गरीब से गरीब भी खाया। क्यों? अल्लाह के रसूल के सदक़े में खाए भाई। नबी वाले, रसूल वाले, अल्लाह ने खिलाया। फिर उस अल्लाह को क्यों भूल गए? उस रसूल को क्यों भूल गए? जिस रसूल ने जो चीज़ देकर गया वो भूलना नहीं। अब उसकी याद हम इस वफ़ात से करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, अबू बकर सिद्दीक़ जैसा कोई इंसान नहीं। ज़रा आए मुसलमानों, अबू बकर से मोहब्बत करने वाले हज़रत उमर से मोहब्बत करने वाले होंगे, उस्मान गनी से, अली से मोहब्बत करने वाले होंगे। जिसने अबू बकर को छोड़ा उन्हें सब सहाबी को छोड़ दिया। और मेरे रसूल ने कहा, अगर तुम मेरे कुरान के अंदर मेरे एक सहाबी की इत्तबा करोगे, एक सहाबी के तरीक़ा पर चलोगे तो जहाँ तुम जन्नत चले जाओगे। जिस सहाबी को पकड़ोगे तो पता चला हमने चारों खलीफा, चारों सहाबियों को मानने वाले हैं। हम वो सुन्नत वाले हैं, वो नबी वाले हैं, वो रसूल वाले हैं, वो अल्लाह के वली वाले हैं, वो पैगम्बर और पीर के मानने वाले हैं, जो हमें किसी को छोड़ते नहीं। कोई और है जो छेड़ता, हमें वो सुन्नी है जो किसी को छेड़ता नहीं। हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं। इंशाअल्लाह ये जो अल्लाह के रसूल की मनाए, इंशाअल्लाह फिर गौसे आज़म की होंगी। इसी तरह से मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वफ़ात के वक्त नबी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा, जा मेरे मुस्तफ़ा, मेरे हबीब से कह दे क्यों रो रहे हैं, रोना क्या है। मेरे नबी आए, मेरे नबी के पास आए, कहने लगे, मेरे नबी कहने लगे, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरी मौत है, मैं इसलिए नहीं रो कि मैं दुनिया से तमाम चीज़ों को छोड़कर जा रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। मेरी उम्मत का क्या होला? हम ही ना भाई उम्मत, कोई और नहीं। कोई गैर का टकने वाला, कोई किसी और को सजदा करने वाला, किसी और की इबादत पूजने वाला को अल्लाह ने सुनने का, मेरी उम्मत हमें कहती मेरा रसूलुल्लाह, मेरे हबीब, मेरे मुस्तफ़ा, या अय्युहन नबी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। कौन पढ़ती? मैं इचना, आप इचना।
हमारे इस वाले ने या रसूलल्लाह कौन कहते हैं, हमें कहते हैं। फिर यही उम्मत के वास्ते मेरे नबी ने आखिरी वक्त में रोया और ऐसा रोया कि मैं अल्लाह मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोए, मेरे खुदा अल्लाह को जो है मेरे महबूब पे, मेरे नबी पर प्यार आते हैं और कहते हैं ऐ मेरे मुस्तफ़ा आप चुप हो जाइए, आपकी उम्मत का ख्याल का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, क्योंकि आप मेरे हबीब हैं और मेरे हबीब के जो हबीब होंगे, मेरे हबीब के जो मानने वाले होंगे, जो उनसे मोहब्बत करने वाले होंगे, उसकी ज़िम्मा मैं लेता हूँ। अब इस उम्मत का फ़िक्र अल्लाह कर रही, इस उम्मत का ख्याल अल्लाह कर रही। रसूल ने किया आखिरी वक्त में, जब पैदा हुए तब भी किया। किसी ने कहा कि रसूल पैदा हुए उम्मती होकर और गए भी उम्मती उम्मती कर को। वो रसूल जिसने अपने उम्मत को पैदा होते ही नाम ले लिया और जाते वक्त भी अपनी उम्मत का ख्याल कर को गया और दुआ कर को भी गया। अब वो दुआ क्या इंशाअल्लाह ख़त्म करता हूँ मैं अपनी बातों को। सुन ले, आज नबी की वफ़ात से ये 12वीं का महीना 29 तारीख़ है, 20 पे 9 तारीख़ ख़त्म होने वाली है, लेकिन वफ़ात इसी 12वीं रबीउल अव्वल को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई थी। लेकिन हमने तो पैदाई जाने, सीरत के बारे में मैंने बयान किया 2-3 जुम्मा से, नबी के इखलाक किरदार के बारे में, लेकिन वफ़ात के बारे में आज मेरा लास्ट बयान है। इंशाअल्लाह फिर 11वीं का महीना में 11वीं का होगा। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वफ़ात आखिरी वक्त में तमाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रही हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा, जा मेरे महबूब को कह दे मैं उसकी उम्मत का ख्याल करता हूँ। और क्या ख्याल करता हूँ, कैसे करूँगा, कुछ शर्तें भाई, अल्लाह ऐसे नहीं आप कहते मैं दूँ, कुछ शर्तें, ऐसा कौन चुपके देता नहीं। कौन भी धर्मा मुझे चुप को देती नहीं देती, आज़ान नहीं दिया, नमाज नहीं पढ़ाया, गो में नहीं रहा, कहाँ तो भी चला गए, देती नहीं देती। वैसे अल्लाह भी नबी से क्या किया, वादा लिया और कहा कि मैं कुछ चाहता हूँ और जिसके सदक़े में तेरी उम्मत मैं ज़िम्मा ले रहा हूँ। तो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह मेरे उम्मत के बारे में जल्दी सुना डाल, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है। आप कहते हैं मैं आपका दीदार का मुश्ताक़ हूँ। अल्लाह क्या फरमा रहे, ए नबी आप चाहे तो क़यामत तक ज़िंदा रहे। मेरे मुस्तफ़ा कह रहे नहीं, अल्लाह आपको मर्ज़ी है दीदार की, मुश्ताक़ की, तो फिर मैं ये दुनिया में रह कर क्या करूँ। मेरे नबी को अल्लाह उतना ताकत दिया था और उतनी ज़म्मा भी दिया कि ए अल्लाह के नबी, ए मेरे हबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप चाहे तो ज़िंदा रह सकते हैं, हमें और आप चाहेंगे तो होंगे नहीं। लेकिन अल्लाह नबी को कहा, हमें और आपको कौन भाई, हमें अगर किसी शीशे में पैक कर को रख दिया जाए, एक आदमी को ऑक्सीजन लगा को शीशे में ICU में रख को पैक कर को रखा, फिर भी मौत आती कि नहीं। तुम्हारे कर्नाटक हर जगह में, तो मेरे दोस्तों मौत किसी को छोड़ता नहीं, चाहे वो कितना भी इलाज क्या तो भी कर ले। तो मौत की तैयारी करना कि नहीं, नबी की वफ़ात से हम ना मालूम चलेगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे मेरे अल्लाह क्या बात है, क्या वादा है। तो अल्लाह तबारक ताला कहने लगे आपकी उम्मत को कह दे कि हर फ़र्ज़ नमाज ज़ुहर, फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, 5 वक्त की नमाज मिला कि नहीं, 5 वक्त की नमाज मैं आपको दिया हूँ। वो 5 वक्त की नमाज तेरी उम्मत पढ़ ले। क्या पढ़ ले भाई, 5 वक्त की नमाज 24 घंटा में पढ़ ले। और 5 वक्त फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मरतबा, जितने भी नमाजी भाई नमाज पढ़ते हैं और जो नए भी पढ़ते हैं उनको भी मेरे ये जो है अपील, दरख्वास्त है, गुजारिश है कि इस बात को अमल कर ले। इंशाअल्लाह आप जब मरेंगे तो मुस्तफ़ा वाले होकर मरेंगे, क्योंकि आखिरी वक्त नबी की है, बिस्तर पे पड़े हुए हैं, मलकुल मौत हाजिर नाजिर है, नबी जाने वाले हैं, अल्लाह वादा दिला रहे, अल्लाह एक रहमत तोहफ़ा दे रहे हैं। क्या तोहफ़ा भाई, नबी की वफ़ात से हमने मालूम चल रहा, ऐ मेरे मुस्तफ़ा मैंने आप पर नमाज़ें दी, आपकी उम्मत भाई होंगे, आपके मुसलमान होंगे, आपका नाम लेने वाला, आपका जिक्र करने वाला कभी भी नमाज छोड़ता नहीं। मैंने जाना कि भाई नमाज कौन छोड़ता। मैं जब गौसे आज़म का देखा, ऐसा उन्हें थे रात भर एक पाँव खड़ा करके कुरान की तिलावत करके ऐसा अल्लाह को मनाते थे, जब तक अल्लाह की आवाज़ ना आती थी गौसे आज़म को तसल्ली नहीं होती थी। 11वीं ऐसा नहीं आया भाई, चुपके महीना आया, 11वीं गौसे आज़म नाम लेती हमें, लेकिन उसकी ज़िंदगी को देखेंगे इंशाल्लाह मालूम हो जाएगा। अब ज़रा सोचो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहने लगे कि ऐ मेरे महबूब, आपको अल्लाह ताला ने फरमाया आपकी उम्मत होंगे, नमाज तो ज़रूर पढ़ेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, फ़र्ज़ है जो, वो फ़र्ज़ नमाज चाहे फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, 5 वक्त की नमाज में जो है एक मरतबा क्या पढ़ना, आयतल कुर्सी, 3 पारा, सूरह बकरा की आयत है, पारा नंबर 3, सूरह नंबर 1 जो सूरह बकरा है,
जो पारा नंबर 3 के शुरू में ही है, एक रुकू के अंदर क्या है भाई, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, और आगे 2-3 लाइन। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये आयतल कुर्सी जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लेगा, उसकी रूह इस तरह से निकाली जाएगी। कैसे भाई, एक दूध पीता हुआ मासूम बच्चे, उसको खाली चुप के कौन तो भी टच के, या तो भी थोड़ा सा चूंटी काट ले, या किसी किस्म का कुछ चुभा डाले, छोटा सा बच्चे को, छोटे बच्चे को कितना रोती भाई, ऐसा लगता कि बच्चों को क्या कि कर दिए, ऐसा होता कि नहीं। अब रूह निकाले तो कितना बड़ा तड़पना, हमें मुर्गी को, गाय को, बैल को क्या भी ज़बह कर को देखती कितना तड़पता, एक बच्चे को थोड़ा सा टच करे तो इतना रोता। अब उनके सीने से, मुंह के तरफ से कलीजे को निकाले तो कितना दर्द होगा, वो बच्चा रहेगा दर्द से कितना तड़पेंगे। तो मेरे अल्लाह फरमा रहे हैं, मेरे महबूब, एक दूध पीता हुआ बच्चा, उसके सीने से, हाथों जो है मुंह के बल से, मुंह के तरफ से कलीजे को निकाला और बच्चा आराम से सोया, उनको मालूम भी नहीं चला कि मेरा कलीजे बाहर होगा। खाली ऊपर से टच करे तो बच्चा कितना रोती, अंदर से निकालना तो कितना तड़पना। ये बात आप समझ लो। वो एक मिसाल दिया अल्लाह ताला ने कि एक दूध पीते हुए बच्चा जो थोड़ा सा टच हुआ तो कितना रोती, लेकिन वो बच्चा के सीने से कलीजे निकाले, उनको मालूम भी नहीं चला, आराम से सोया, वैसी रूह निकालूंगा उसका। अब ज़रा सोचो कितनी बड़ी आराम की रूह निकलेगी कि उनको मालूम ही नहीं चलेगा कि उनकी रूह इस दुनिया से चलेगी। जब लोग नहला को धला को जाएंगे, भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, तब मालूम चलता, नहीं मैं तो मर गया, मेरे दोस्त मेरे भाई रो रही मेरे वास्ते, मेरे मैयत को लेकर जा रही। जब आप मरेंगे तब आपको एहसास होगा, हमें मिट्टी जो है नहलाती दिलाती अपने बाप दादों को, अपने रिश्तेदार, अपने मुसलमान भाई को, तो हमें ये समझ रही कि इनको हमें नहलाती, इन्हें क्या देखता कि नहीं देखता, क्या करता कि नहीं करता, ये समझ रही ना। हदीस के अंदर हमें देखता कौन क्या कर रही कि नहीं कर रही। उस वक्त हमारे पास आकर उनकी रूह बोलती, मेरा बेटा मेरे लिए अल्लाह का कलाम पढ़ दे, मेरे लिए कुरान पढ़ दे, मेरे लिए दुआ कर, मेरी रूह को तकलीफ हो रही, मेरी परेशान हो रही। तो उस अमाल तुम्हारे जिस तरह होंगे वैसी तकलीफ होगी। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे, मेरे अल्लाह ताला ने, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज, हर नमाज को पढ़ेंगे और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मरतबा आयतल कुर्सी को तिलावत कर लेंगे, उसकी रूह ऐसी निकाली जाएगी उनको मालूम ही नहीं चलेगा। तो ये थे रूह। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए कि अब मेरी उम्मत का कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मेरा उम्मत कभी भी नमाज को नहीं छोड़ेगा। अब नबी के आखिरी वक्त, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक्त हो गया, नमाज के टाइम था, फजर की या ज़ोहर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम पूरे जमा हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे, मस्जिद नबवी में, अपने हुजरे शरीफ, आज भी वही मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी है, नबी की हुजरे मुबारक भी। नबी पास अपने हुजरे से निकलकर, अपने रूम, अपने कमरे से निकलकर जो है मस्जिद में दो सहाबी के सहारे आ रहे हैं। दो सहाबियों ने दो बाजुओं को पकड़ ले, बीमार थे भाई, कमज़ोर थे, तो दो सहाबे किराम पकड़ को ला रहे हैं। इधर अबू बकर सिद्दीक, पूरे सहाबे किराम, नमाज की टाइम होगा, तैयारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें, बल्कि नमाज हमें पढ़ लेंगे। तो उन्हें देखा कि नहीं, देखेंगे मेरे नबी आ रहे कि नहीं। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए हैं, पूरे सहाबा, हज़रत अली, हज़रत अबू उस्मान, हज़रत सिद्दीक, हज़रत उमर, जितने भी सहाबे और बहुत सारे सहाबे किराम सब खड़े हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जगह छोड़े, नबी पाक के लिए जगह जाओ भाई, नबी नमाज वाले। तो नबी ने कहा, मैं बीमार हूँ, मुझे सेहत नहीं, मैंने अबू बकर सिद्दीक को हुक्म दिया था नमाज का, उन्हें पढ़ा दिए तो बस, उन्हें पढ़ा दिए तो मेरी जगह उन्हें, अब तुम्हें इसे इमाम मान लेना, खलीफा मान लेना। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे सबसे जो मुस्तफ़ा, जो अम्बियों का इमाम, अम्बिया पूरे रसूलों का इमाम बने उन्हें हिजरत के वाक़या में। तो मेरे नबी पाक पीछे, पूरे साहबे आगे हो गए। अबू बकर सिद्दीक नमाज अल्लाहु अकबर करके खड़े हो गए। नबी पाक पीछे बैठ गए नमाज के वास्ते, पढ़े, पूरे साहबे किराम सजदे में, नमाज में है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठा दिए अल्लाह के पास, ए अल्लाह, मेरी पूरी उम्मत को तेरे घर में लाकर रख दिया हूँ, मेरा पूरा उम्मत मेरे मानने वाले, ए अल्लाह तेरी इबादत करने वाले, मैं अपने मुसलमान भाइयों को ए अल्लाह तेरे हवाले कर रहा हूँ, ए अल्लाह तू इसकी हिफाजत करना
کرنا، یا اللہ تو اس کی خیال کرنا، یا اللہ تو اس کی ذمہ کرنا، کیونکہ میرے امت کو کسی باغ میں چھوڑ کر نہیں آیا ہوں، میرے امت کو کسی دکان میں نہیں چھوڑ کر آیا ہوں، میری امت کو کسی بیوپار میں نہیں چھوڑ کر آیا ہوں، تجارت کاروبار میں چھوڑ کر نہیں آیا ہوں۔ اے اللہ میرے جتنے بھی آج ماننے والے ہیں، جو بھی میرا کلمہ پڑھتا ہے، جو بھی آپ کو اللہ سمجھتے ہیں، میں نے اپنی امت کو تیرے مسجد تیرے حوالے نماز کے حالت میں یہ خیال رکھنا بھائی، یہ بہت امپورٹنٹ یعنی بہت بڑی بات ہے بھائی، ہم نے یہ یاد رکھنا۔ میرے نبی نے اس چیز کو جو یاد رکھا وہ غلام مصطفیٰ بن گیا، جو بھی نبی کی وفات کو یاد رکھا غلام مصطفیٰ بن گیا، آج بن جائیں گے انشاءاللہ۔ نبی پاس ہم ہاتھ اٹھا کے، اے اللہ میری امت نہ کوئی دکان میں، نہ کوئی مکان میں، نہ کوئی کھیت، نہ باغ بغیچے، نہ تجارت، نہ کاروبار، نہ دکان، پورے امت کو آج نماز میں ہے، پورے امت تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اللہ تو خیال کرنا۔ میرے نبی روئے، دعا کیے، وفات۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں پورے امت کو نماز کی حالت میں امانت دے کر گئی۔ کیا دے کر گئی؟ امانت۔ صدیق نماز پڑھا رہی ہیں، اللہ کے رسول کے صحابی نماز، صحابہ کرام نماز۔ اب ذرا سوچو، ان پورے صحابہ نماز کو نہیں چھوڑا اس لیے کہ یہ نبی کی امانت تھی۔ حضرت عمر فاروق کی زمانہ آیا جب خلافت امامت سنبھالے، نماز کی حالت میں دشمن تلوار سے وار کر رہی لیکن جان گوا دے رہی، جان جا رہی۔ صحابہ کو پہلے نبی کی امانت ہے، کیونکہ نبی جب آخری وقت میں ہم نماز کو چھوڑ کر گئے تھے، اگر میری موت جاتی ہے، میں تڑپتا ہوں، خون بہاتا، کوئی بات نہیں، میں مرنے دو، عمر مر رہا ہے مرنے دو، مگر نبی کی امانت جو نماز ہے اس کو مت چھوڑنا۔ صحابی کو کھڑا کر دیے، صحابی رسول نماز پڑھا رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ تڑپ کر چلے گئے، نبی کی نماز کو کسی کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا۔ پھر کربلا میں جو آپ محرم کو زیادہ سمجھتے، جو حسین سے محبت رکھتے ہیں، آج میری اس نبی کی پیغام کو سن لو۔ وہ کربلا والے شہید اعظم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے سرزمین میں نماز کے لیے جان دیا تھا، اسی لیے کہ میرے نانا نے ہمیں نماز میں چھوڑ کر گیا تھا، میرے رسول نے نماز کے چھوڑ میں گیا تھا۔ آج اگر میں نماز چھوڑ کر لڑائی پر دھیان دوں اور جو ہے جیت جاؤں تو میرا جیتنا بیکار ہو جائے گا، میرا اس امامت کرنا بیکار ہو جائے گا، میری خلافت میری کام نہیں آئے گی۔ اگر کام آئے گا تو میرے نبی کی امانت جو نماز ہے، آج اگر میں نماز پڑھ کے سر کٹا دوں تو کل مجھے پورے امت فخر کریں گے۔ آج کر رہے کہ نہیں بھائی؟ محرم آتے تو کہتے کہ حسین یا حسین، چلا رہے سنیا، کیوں کہ حسین نے وہ نماز پڑھی جو کبھی بھی کوئی سجدہ کربلا کے سرزمین میں قیامت تک نہیں کیا اور نہ کرے، وہ شہید اعظم بن گئے۔ ذرا سوچیں، یہ نمازی کی وجہ سے نا آج ہمیں نماز کیوں چھوڑے بھائی؟ نبی کی وفات سے ہم نہ نماز میں چھوڑ کے گئے تھے، یہ نبی کی امانت ہے۔ میں اس گاؤں سے گزارش کرتا ہوں، یہ نبی کی امانت ہے بھائی، اس میں خیانت مت کرنا، یہ حضرت کی ذمہ داری نہیں، آپ تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ حضرت تو نماز پڑھتے ہی ہیں، اذان دیتے ہی ہیں، مگر آپ ان کے پیچھے پڑھ کر یہ امامت، یہ خلافت، مسلمانیت زندہ رکھے تبھی زندہ رہے گا، ورنہ آپ بھی برباد ہو جائیں گے۔ امت ہو کر بھی امت جیسا زندگی نہیں گزاریں گے، غیر کی طرح جائیں گے، کل رسول والے، نبی والے، پیر والے، غوث والے نہیں بنیں گے۔ آپ اگر چاہتے ہیں انشاءاللہ اس جمعہ میں نبی کی وفات کے بارے میں نے بیان کیا، اس وفات سے ہم نے یہ معلوم چلتا کہ اللہ کے رسول آخری وقت میں جو ان کے صحابہ کرام آخری وقت میں اور حضرت حسین کربلا غوث جو بھی اللہ والے تھے، سب نے نماز میں اللہ کو پیارا ہوئے اور نماز کو نہیں چھوڑا۔ انشاءاللہ آج ہم بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس باتوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔